السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے میں اپنے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ میرا نام سہراب ہے اور میں اس سرزمین سے تعلق رکھتا ہوں جس کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ جنگ و وجدل اور حسن و عشق کی سرزمین یعنی سائرس اعظم کا مالک ایران میرا وطن ہے، جہاں حافظ سعدی دفن ہیں۔ وہ علاقہ میرا مولد ہے۔ میں شیراز میں پیدا ہوا، وہیں پروان چڑھا، تعلیم و تربیت حاصل کی اور وہیں میری زندگی کا وہ ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا جو عقل و خرد سے کوئی بیگانہ نہیں کھاتا۔ جب کا یہ واقعہ ہے، اس زمانے میں کوئی بھی میرے خاندانی پس منظر سے واقف نہیں تھا۔ کسی کو یہ نہیں معلوم کہ ایرج بختیاری میرا باپ ہے۔ اس بات سے صرف میں واقف تھا یا میرا باپ، جس کی میں ناجائز اولاد ہوں۔ میری گنہگار ماں میری پیدائش کے چند گھنٹے بعد ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ ایرج بختیاری کا شمار ایران کی معزز و محترم شخصیتوں میں ہوتا تھا۔ ملک کی بڑی بڑی تقریبات اور شاہی ضیافتیں اس کے وجود سے مبرا نہیں ہوتی تھیں۔ اسے شاہ کی تو نہیں، لیکن شاہ کے قریبی لوگوں کی قربت ضرور حاصل تھی، اور اپنے اسی اثر و سوگ کی بنا پر اس نے ملک کے طول و عرض میں ایک گھناؤنا کاروبار پھیلا رکھا تھا۔ یہ تو مجھے کافی عرصے بعد معلوم ہوا کہ اس کاروبار کی شاخیں اکٹوپس کی ٹانگوں کی طرح ایران کے باہر تک پھیلی ہوئی تھیں۔ گو کہ ایرج بختیاری ایران کے سرکاری مذہب سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا اور اس کا تعلق زرتشتی مذہب سے تھا، لیکن پھر بھی اسے سرکاری حلقوں میں خاصی قدر و منزلت حاصل تھی، اور کسی کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ایرج بختیاری کا تعلق اسمگلنگ کے ایک بہت بڑے کاروبار سے ہے۔ یہ بات تو صرف اس کے گروہ کے ہی چند خاص افراد جانتے تھے، یا مجھ کو معلوم تھا کہ وہ اسمگلنگ ہی نہیں بلکہ قتل و خون ریزی کے بعض معاملات میں بھی ملوث ہے۔ گو کہ وہ قتل اس نے خود اپنے ہاتھ سے نہیں کیے، لیکن وہ سب کچھ ہوا اسی کی ایما میں تھا۔ میں ایرج بختیاری کے ساتھ اس کی شاندار حویلی میں رہتا تھا، مگر لوگ مجھے اس کا بیٹا نہیں سیکرٹری سمجھتے تھے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تحمید کچھ بڑھتی جا رہی ہے۔ مناسب ہوگا کہ اصل قصہ شروع کر دوں۔ ابھی بہت سی ضروری باتوں کا بیان لازم ہے، مگر خیر، بیچ میں موقع دیکھ کر میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ وہ اماؤس کی ایک تاریک رات تھی۔ میں حویلی میں اپنے کمرے کے ایک دریچے سے باہر پھیلے ہوئے اندھیرے میں گھور رہا تھا، اور تاریک خلا کی وسعتیں مجھے اپنے دل کی طرح ویران اور اداس معلوم ہو رہی تھی۔ میری زندگی کچھ اس طور سے گزر رہی تھی کہ میں خوشی اور ہم آہنگی کے احساسات سے آشنا نہیں ہو سکا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ معاشرے میں اپنا کوئی مقام نہیں سمجھ سکا تھا۔ میری حیثیت ابھی خود ہی میری ہی نظروں میں متعین نہیں ہو سکی، اور کچھ متعین ہوئی تھی تو صرف اس حیثیت سے کہ میں بدگوشت تھا، ناجائز خون تھا، ناجائز۔ جب بھی سوچتا تھا میرے ذہن پر ہتھوڑے سے برسنے لگتے، اور یہاں مجھے یوں محسوس ہونے لگتا جیسے کوئی میرے دماغ کو گرم گرم سلاخوں سے داغ رہا ہو۔ ان لمحات کا کرب بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ اس اذیت کو برداشت کرتے کرتے مجھے اپنے باپ سے نفرت ہو گئی۔ ایرج بختیاری میرے لیے ایک ایسا شخص بن گیا جس نے مجھے غموں اندوہ کے پنجرے میں قید کر دیا اور اذیتوں کے تیروں سے میرا سینہ چھلنی کر دیا۔ میں یہ ساری اذیتیں خاموشی سے برداشت کیے جا رہا تھا، کیونکہ اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میں ایرج بختیاری سے خوف زدہ تھا
क्यों इस हवेली के तय खानों में मैंने उसके चाबक की शाएं शाएं सुनी थीं। वो अक्सर अपने ग्रोह के अफराद को उनकी किसी खता पर बड़ी भयानक सजाएं दिया करता था। उसकी शख्सियत मेरे लिए मुजस्समो खौफ व हरासा बनकर रह गई। रात का पहला पहर भी अभी अपने इंतकाम को नहीं पहुंचा था, लेकिन हवेली पर ऐसी खामोशी छाई हुई थी जिसे 3 पहर रात गुजर चुकी हो। महीने में ऐसी रातें 2-1 बार ही आती थीं, लेकिन उसका इल्म किसी को नहीं था कि वो कब आ जाएंगी। बस अचानक ही किसी शाम को एरज बख्तियारी का ये हुक्म नाजल हो जाता कि रात को 8 बजे तक सब लोग अपने अपने कमरों में चले जाएं और फिर सुबह होने से पहले बाहर कदम बिल्कुल ना रखें। मुकद्दस आग के शोले मेरी नज़रों के सामने लपक रहे हैं और उसकी धीमी धीमी सी तपश मेरी रूह को सुकून पहुंचा रही है। मुझे अपनी रगों जान से भी करीब महसूस हो रहा था, इसलिए मैं उन लम्हात में कस्बो अफ्तरा के करीब नहीं फटक सकता। मुकद्दस आग की कसम, मैं इस वक्त जो कुछ भी लिख रहा हूँ उसमें अफसानवी रंग तो ज़रूर होगा, लेकिन वो सब बातें हकीकत से दूर नहीं होंगी। मुझ पर जो कुछ गुजरी मैं वो बेकमो कास्ट बयान कर देना चाहता हूँ। अगर इन बातों पर यकीन कर लिया गया तो इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, और यकीन ना किया गया तो भी मेरे लिए नुकसान का कोई पहलू नहीं। लिहाजा आपका ये हक महफूज है कि इस पर यकीन करें या ना करें। एक ज़माना था जब देवमालाई करदारों को मैं महज इख्तराई जहनों की मखलूक समझता था और मेरे बस किस्से कहानी तक महदूद थे, लेकिन जब एक देवमालाई करदार जीती जागती हालत में मेरे सामने आया और उसने मेरी ज़िंदगी में हलचल मचा दी, तब मुझको मालूम हुआ कि वह सब कुछ महज किस्से कहानियों की बातें नहीं हैं। वो देवमालाई करदार कब और क्यों कर मेरे सामने आया, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात दोहराना पड़ेंगे, ताकि तस्वीर अपने भरपूर पसे मंज़र के साथ आपके सामने आ सके। वो ऐसी ही रात थी जब हवेली के मकीन अपने अपने कमरे में मुकीद हो चुके थे, और इस रात मेरे जहन के वीरानों में ये सवाल बगोले की तरह गर्दिश कर रहा था कि ऐसी रातों में हवेली किस किस्म की सरगर्मियों की आमाज गाह बनती है। आखिर वो क्या बातें हैं जिनको एरज बख्तियारी मुझसे भी छुपाना चाहता है। मैं तो उसके जुराइम की पूरी फहरिस्त से कमाहका वाकफियत रखता था। मेरे दिल ने मुझे उकसाना शुरू किया कि आज की रात एरज बख्तियारी के इस रात से भी आगाही हासिल कर लेनी चाहिए। इस ख्याल के साथ ही मेरे दिल ने तेजी से धड़कना भी शुरू कर दिया। रह रह कर खौफ की लहरें भी मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ने लगीं, लेकिन उस हरास के बावजूद मेरा ये इरादा पुख्ता होता चला गया कि आज राज एरज बख्तियारी के इस राज से पर्दा ज़रूर उठाऊंगा। अपने इस इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए जब मैंने दरवाजे की तरफ कदम उठाया तो मेरी टांगें कपकपा रही थी और दिल की धड़कनों का तो अब ये आलम था जैसे पिसलियां तोड़कर दिल बाहर निकल आना चाहता हो। मैंने कांपती हुई उंगलियों से दरवाजे की चटखनी गिराई। मैंने ख्याल रखा था कि चटखनी की आवाज़ ना हो, लेकिन उंगलियों की कपकपाहट के बाद मेरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। खटका होते ही मुझे अपना दिल उछलकर हलक में आता महसूस हुआ। मुझे कुछ यूं गमान हुआ जैसे वो आवाज़ एरज बख्तियारी के कानों तक पहुंच गई होगी। मैं दम साधे खड़ा रहा। कुछ देर के लिए दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं रही और मेरी परेशानी से पसीना फूट निकला। कुछ देर बाद मैंने दरवाज़ा खोलकर राहदारी में कदम रखा। अब मुकम्मल तारीकी थी। चंद लम्हे आहट लेने के बाद मैंने दोबारा कदम उठाने शुरू किए। चूंकि हवेली का चप्पा चप्पा मेरा देखा भाला हुआ था, इसलिए अंधेरे के बावजूद भी मुझे चलने में कोई खासी दुश्वारी नहीं हुई। मेरा रुख हवेली के उस हिस्से की तरफ था जो सिर्फ एरज बख्तियारी के इस्तेमाल में रहता था। मैं अपनी सरगुज़श्त में अपने बाप का जिक्र उसका नाम लेकर कर रहा हूँ, और इस तरह
معاشرتی تقاضے کی نفی ہو رہی ہے، لیکن جب معاشرے میں میری حیثیت کا تعین ایک بیٹے کی حیثیت سے کیا ہی نہیں گیا تو پھر میں اس معاشرتی تقاضے کا احترام کیوں کروں؟ جب رشتے ناجائز ہوں تو اظہار تکلم بدل جاتا ہے۔ خیر، میں بلی کی طرح دبے قدموں آگے بڑھتا رہا اور پسینے کے قطرے مجھے اپنے جسم پر کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ جب میں ایرج بختیاری کی رہائشی کمروں کے نزدیک پہنچا تو مجھے ایک سریلے کہکے کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ میں یک لخت ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ نسوانی کہکا میرے لیے قطعی غیر متوقع تھا۔ حیرت سے میرے تنفس کی رفتار کچھ اور بڑھ گئی۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہاں اتنی رات گئے کسی عورت کا وجود کیا معنی رکھتا ہے۔ کچھ دیر بعد مجھے بیک وقت کئی کہکے سنائی دیے اور میری حیرت میں خاصا اضافہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایسا چھناکا سنائی دیا جیسے کوئی شیشہ فرش پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو۔ اب پھر سناٹا تھا۔ قدرے توقف کے بعد میں نے دوبارہ قدم اٹھانے شروع کیے اور جلد ہی اس کمرے کے سامنے پہنچ گیا جسے ایرج بختیاری اپنی خواہگاہ کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ وہ آوازیں اسی کمرے سے آ رہی تھیں اور اب میں نے انہیں صاف سن رہا تھا۔ دبی دبی ہنسی اور چھیڑ چھاڑ کی باتیں ہو رہی تھیں۔ ایرج بختیاری عمر خیام کی کوئی ربائی پڑھ رہا تھا۔ اس کمرے کی ایک کھڑکی راہداری میں بھی کھلتی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اندر سے کھڑکی پر پردہ پڑا ہو، لیکن ایرج بختیاری کو شاید کامل یقین تھا کہ اس رات کو کوئی بھی اپنے کمرے سے نکل کر وہاں تک آنے کی جرت نہیں کرے گا، اس لیے اس نے پردے کی طرف سے لاپرواہی برتی تھی۔ میں کھڑکی سے کمرے کے اندرونی منظر صاف دیکھ سکتا تھا، جبکہ راہداری میں تاریکی ہونے کی وجہ سے مجھے کسی کے نظر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کمرے کا منظر ایسا تھا جسے دیکھ کر میرا سارا جسم بے شمار تاروں میں منقسم ہو گیا اور وہ سارے تار جھنجھنا اٹھے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی عورت کو ستر پوشی سے عاری نہیں دیکھا، مگر کمرے میں ایک نہیں تین بے لباس شعلہ جوالا موجود تھے۔ ان تینوں کی عمریں 16 سے 20 شامل کے درمیان رہی ہوں گی۔ وہ تینوں بلا کی حسین اور غضب کی متناسب الاعضاء تھیں۔ ارغوانی سیال نے انہیں تقریباً مدہوش کر رکھا تھا اور کچھ کیفیت ایرج بختیاری کی بھی یہی تھی۔ بے حجابی کا وہ عالم دیکھ کر شاید مجھے آنکھیں بند کر لینی چاہیے تھی، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے میری بصارت کو کسی طلسم نے خود سے پیوست کر لیا ہو۔ میری پلک تک نہیں جھپکتی اور میں دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ شاید مجسمہ شباب ہی دنیا کا سب سے بڑا طلسم ہے، اور چونکہ میں نے کبھی اس باب طلسم میں قدم نہیں رکھا تھا، اس لیے میں نے اس فضا کے سحر میں کھو کر رہ گیا۔ مجھے زندگی کی ساری رعنائیاں ایک نقطے پر سمٹی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اچانک مجھے احساس بھی ہوا کہ اب تک بے خبر زمینوں پر بھٹکتا رہا ہوں۔ اب تک کوئی گل بدن مقسوم نہیں ہوا تھا۔ اب تک کسی جسم کے جھرنے کی طرح پھوٹتی ہوئی مہکار نے میری جان کو معطر نہیں کیا، اور کبھی بھی کسی نازنین کے لبوں کی حلاوت میرا مقدر نہیں بنی۔ جبکہ ایرج بختیاری کی آغوش میں 3 جوانیاں مچل رہی تھیں۔ تینوں شیرلے شعلے اس کے گرد لپک رہے تھے اور وہ ان کی تپش سے سکون پا رہا تھا۔ میں کھڑا رہا، سب کچھ دیکھتا رہا، اور میرا جسم دہکتی ہوئی بھٹی بن گیا۔ میں نے اپنے ہونٹ دانتوں میں دبا لیے۔ وہ سب کچھ دیکھتے دیکھتے میری یہ حالت ہو گئی کہ اگر میں کچھ دیر اور رک جاتا تو کوئی مجنونانہ حرکت کر بیٹھتا اور وہاں پر میری موجودگی ایرج بختیاری کے علم میں آ جاتی۔ میں خوفزدہ ہو کر کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گیا اور پلٹ کر تیزی سے اس کمرے کی طرف چل پڑا۔ شاید اس وقت مجھے اپنے قدموں کی آہٹ دبانے کا خیال ہی نہیں رہا، لیکن اس وقت ایرج بختیاری جن منزلوں سے گزر رہا تھا وہاں دنیا و مافیا کی خبر نہیں رہ جاتی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بستر پر گر پڑا اور بری طرح ہانپنے لگا۔ میرا جسم اندر ہی اندر گیلی لکڑی کی طرح سلگ رہا تھا اور مجھے اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے بستر سے اٹھ کر ٹھنڈے پانی کے 2 گلاس پیے، لیکن اس سے بھی میری حالت نہیں سنبھلی۔ میں جس آگ میں جل رہا تھا
وہ شاید سمندر کے سارے پانی بھی نہیں بجھا سکتے تھے۔ اس کا تریاق تو ایک ہی تھا، حسن شباب۔ اچانک میرے ذہن میں ربابہ رینگ آئی، اپنی تمام تر حشر سمانیوں کے ساتھ میری تصویر پر چھاتی چلی گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی میرے جسم میں خوف کا غبار بھی پھیلتا چلا گیا۔ ربابہ میری بہن تھی، ایک ایسی بہن جس کی رگوں میں میرے باپ کا خون تو دوڑ رہا تھا، لیکن میری ماں اس کی ماں نہیں تھی۔ اس کی ماں تو ایرج بختیاری کی بیوی تھی، لہذا اس کا درجہ میری ماں کے منصب سے کہیں زیادہ بلند تھا۔ معاشرہ تو شاید یہی کہے گا کہ میری ماں کا کوئی منصب ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک آبرو باختہ عورت تھی، لیکن میں کہتا ہوں اگر آبرو باختہ عورت کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں تو اس مرد کی بھی کوئی حیثیت نہیں جس نے اس عورت کی آبرو لوٹی ہو۔ ایسے مردوں کے چہروں پر بھی معاشرے کا تھوک ہونا چاہیے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ معاشرے کا ٹھیکہ صرف مردوں کے حصے میں آیا ہے، وہ بھلا خود کو گردن زنی پر کیوں قرار دیں گے؟ میں جذبات میں کسی اور طرف بہہ گیا۔ ذکر تو ربابہ کا چل رہا تھا، میری بہن تھی، لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ میری اور اس کی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کا کم از کم ایک حصہ ضرور مشترک ہے۔ وہ میرے بارے میں صرف اتنا جانتی تھی کہ میں اس کے باپ کا پرائیویٹ سیکرٹری تھا۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ اس نے مجھے کبھی درخوئے اطنان نہیں سمجھا تھا، سیدھے منہ بات کرنا بھی پسند نہیں کی تھی۔ اس شہر اخراجات میں اس کے بڑے باپ کی بیٹی کے لیے بڑے باپوں کے ان گنت بیٹے المیے تھے جو اس کے اشعار آبرو پر دل نچھاور کرنے کے لیے آمادہ رہتے۔ شوخ و چنچل ربابہ انہیں اپنی انگلیوں پر نچاتی اور میں پرسکوت آنکھوں سے وہ سارے کھیل دیکھتا رہا۔ میں نے کبھی بھی اس معاملے میں تماشائی کی حیثیت سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر اس رات وہ شعلہ رخ ایک عجیب ہی روپ میں میرے تصور کے پردے پر لہرائی اور کرت کی طرح پھیلتی چلی گئی۔ میرے ذہن میں اس کے صرف وہی روپ ابھرتے جن میں وہ ہیجان خیز لباس میں نظر آئی تھی۔ ایک مرتبہ تو میں نے اسے آفتابی غسل کے لمحات میں بھی دیکھا تھا، خاص طور سے وہی لمحات میرے ذہن پر منجمد ہوتے چلے گئے۔ اس طرح وہ آگ میرا جزو بدن ہوتی چلی گئی جو ایرج بختیاری کے لہو لب نے بھڑکائی تھی۔ آگ، ہاں آگ، میرا وجود ایک شعلہ بنتا جا رہا تھا، ضبط ایک بندھن میں آگ میں جل رہا تھا، جل جل کر ٹوٹ رہا تھا۔ پھر میرے ذہن تاریک ترین گوشوں میں جا سوئی تھی کہ ربابہ سے میرا دوہرا رشتہ نہ صحیح اکہرا رشتہ ضرور تھا، وہ ایک رشتے سے ضرور میری بہن تھی۔ میں نے اس رشتے کو فراموش کر دیا۔ اس وقت میری خواہش صرف یہ تھی کہ بس کسی طرح اس آگ کو بجھا لوں جو میرے جسم میں اہرمن نے بھڑکائی تھی۔ ظاہر ہے کہ بدی کا اس آگ کا تعلق ہر من سے ہو سکتا تھا۔ ویسے میں دنیا کے تراشے ہوئے ان رشتوں اور ان کے احترام کو قطعی نہیں، اختلاف رائے کا حق سب کو حاصل ہے، لیکن اس اختلاف کا سبب شاید ہو کہ اس دنیا میں میری آمد اس خفیہ راستے سے ہوئی ہے جس کو ناجائز قرار دیا جا چکا تھا۔ میں نے ربابہ کے کمرے پر دستک دی، میرے ہاتھ جذبات کی شدت سے کانپ رہے تھے اور پیشانی پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ مجھے ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری دستک بھی دینا پڑی، تب کہیں جا کر خوابیدہ ربابہ کی آنکھ کھلی۔ کون ہے؟ ربابہ کی بھرائی ہوئی آواز میں جلاہٹ تھی۔ دروازہ کھولو، مجھے خود اپنی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سہراب، ربابہ کے جلائے ہوئے لہجے میں حیرت شامل تھی۔ ہاں، دروازہ کھولو، ایک بہت ضروری کام ہے۔ ربابہ کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، وہ دروازے کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ اس کے سان و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ دروازہ کھولتے ہی ایک شعلہ سا اس کے کمرے میں لپک جائے گا اور وہ پلک جھپکتے ہی اس شعلے کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ اس کے کمرے کا ورد اس وقت حوث کے جہنم کا دروازہ بن چکا تھا اور اس دہانے میں گرنے کے لیے آگے بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ اس کے قدم ایک ایسے آتش فشاں کی طرف بڑھ رہے تھے جس کا لاوا پھٹ پڑنے کے لیے مضطرب تھا۔ دروازہ کھلا اور وہ میرے سامنے آ گئی۔ میں نے اسے آج پہلی مرتبہ اس عالم میں دیکھا تھا جس میں وہ پہلے کبھی نظر نہیں آئی۔ اس رات مجھے معلوم ہوا کہ وہ شب خوابی کے لیے مغربی طرز کا مختصر ترین لباس پسند کرتی تھی۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے نائٹ گون
पहन लिया था, मगर उसका रेशमी कपड़ा इतना बारीक था कि उसके जिस्मानी नकूश उसमें से गोया चीख रहे थे। कम अज़ कम इस लम्हे मेरा एहसास ये था कि जैसे वो चीख चीख कर मुझे ही पुकार रहे हों। क्या बात है, रुबाबा मुझे नहायत कड़े तेवरों से घूर रही थी, लेकिन मैं जवाब देने की बजाय तेज़ी से अंदर दाखिल हो गया और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। बदतमीज गुस्ताख, रुबाबा चीखी, साथ ही उसका हाथ घूमा। तड़ाक से एक चांटा मेरी गाल पर पड़ा, लेकिन मैंने उसकी परवाह किए बगैर दरवाज़ा बंद करके बोलट चढ़ा दिया। ये तुम क्या कर रहे हो, रुबाबा चीखी, लेकिन इस मर्तबा उसकी आवाज़ में कदरे खौफ भी शामिल था। मैं उसकी तरफ मुड़ा और कांपती हुई आवाज़ में बोला, मेरा बदन जल रहा है रुबाबा, मुझे अपने रेशमी बदन की ठंडक बख्श दो, वरना मैं खाक हो जाऊंगा। रुबाना को शायद मेरी आंखों की खौफनाक साए नाचते नजर आ गए, क्योंकि अचानक उसके चेहरे पर खौफ का गुबार गहरा होता चला गया। वो उल्टे कदमों पीछे हटी। वो धीमे आवाज़ में पागलों की तरह नहीं नहीं करती जा रही थी, रुबाबा इस वक्त मुझे ना ठुकराओ। मैं दोनों हाथ फैलाकर उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। मेरा जिस्म जल रहा था, और ये आग तुम्हारे बाप ने ही लगाई है, अब तुम ही इसे बुझा सकती हो। मुझे अंदाज़ा है कि तुमने बहुतों को सहराब किया होगा, इसलिए मुझे भी तशन्ना नहीं रखोगी। नहीं नहीं, रुबाबा यही कहती चली गई। बेकार है रुबाबा, ये तूफ़ान अब टल नहीं सकता। आओ हम दोनों मिलकर इसमें बह जाएं। आओ रुबाबा, ये तूफ़ान अब हमारा मकसूम हो चुका है। जिंदगी की लहरों को इस तूफान में मचल दाने दो। नहीं नहीं, रुबाबा कहती हुई दीवार से जा लगी। अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए वो दाएं जानब सिरकने लगी, लेकिन मैं लम्हा बे लम्हा उसके करीब होता जा रहा था। मेरे दोनों हाथ फैले हुए थे। मैं रुबाबा को इस तरह समेट लेना चाहता था कि वो मेरा जज़्बो बदन बनकर रह जाए। अब आग इतनी फैल चुकी है रुबाबा कि इसका दामन बचाने की कोशिश अबस होगी, मैंने कहा, और उस वक़्त मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। मैंने अपने दोनों हथेलियां इस तरह दीवार पर टिका दी कि अब रुबाबा मेरी दोनों कलाइयों के बीच में थी। उस सीना मेरे सीने से टकराने को था, और उसका चेहरा मेरे चेहरे से इतना करीब आ चुका था, हमारी सांसें आपस में उलझने लगीं। उसके जिस्म से उठती हुई महक मेरे जुनून को हवा देने लगी। शोले कुछ और तेज हो गए, जज्बात कुछ और भड़क उठे। नहीं रुबाबा, इसी लम्हे पागलों की तरह पूरी कुव्वत से चीख पड़ी, और उसकी यही चीख मुझे जल्लाहट में मुब्तला कर दी। ख़त्म करो ये चलतर, मैंने गुराते हुए कहा, और दोनों हाथ उसके शानों पर रखकर उसे बुरी तरह झंझोर डाला। लेकिन दूसरे ही लम्हे वो हज़यानी अंदाज में बड़े ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। उसकी ये चीखें शायद सारी इमारत में फैल रही होंगी। मैंने झंझला कर उस पर हमला कर दिया। मेरा अंदाज बिल्कुल वहशियों का सा था। मैं उसके कपड़े फाड़ने और उसे भंभोड़ने लगा। वो मेरी गिरफ्त में थी, और उसका जिस्म चिकनी मछली की तरह मेरी गिरफ्त से फिसल जाने के लिए तड़प रहा था। साथ ही उसकी चीखों पुकार भी जारी थी। मुझे चाहिए था कि उसका मुंह दबाकर उसकी चीखों को रोकने की कोशिश करता, लेकिन शायद इन लम्हात में मेरी अक्ल खबत होकर रह गई। मेरे जहन के किसी गोशे में ये ख्याल ना उभरा कि ये चीखों पुकार एरज बख्तियारी के कानों तक ज़रूर पहुँचेगी। मैं इस वक्त एक आतिश फशां की तरह गड़गड़ा रहा था। मेरे जिस्म में लावा सा पक रहा था, और बह निकलने के लिए रास्ते ढूंढ रहा था। मैंने रुबाबा को दोनों हाथों पर उठा लिया। वो मेरी गिरफ्त से निकलने के लिए मचलती रही, मुझ पर मुक्कों की बारिश करती रही, लेकिन भला उन खूबसूरत और नाजुक हाथों की ज़रब मुझ पर किस हद तक असर अंदाज हो सकती थी। मैं उसे उठाए हुए कमरे के दूसरे गोशे तक ले आया और बिस्तर पर पटक दिया। ठीक उसी वक्त किसी ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, और फिर एरज बख्तियारी की गुंजीली आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची। वो रुबाबा को पुकार रहा था। मेरा जोशो खरोश में अब भी कोई कमी नहीं आई। शायद इस वक्त मैं पागल हो चुका था। मेरा चेहरा रुबाबा के चेहरे पर झुकता चला गया। मेरे दहकते हुए खुश्क और प्यासे होंठ हलावत का एक घोंट पीने ही वाले थे कि फायर की आवाज़ से कमरा गूंज उठा। गोली दरवाजे में सुराख करती हुई सामने की दीवार से टकराई, और कुछ प्लास्टर उधर कर ज़मीन पर जा गिरा। अंदर कौन है रुबाबा?
एरज बख्तियार की चीखती हुई आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची। सोहराब, रुबाबा भी पूरी कुव्वत से चीखी थी। बस फिर तो ऐसा मालूम हुआ जैसे गोलियों का तूफान आ गया हो। तड़ तड़ गोलियां चलने लगीं। दरवाजे के सुराखों में इजाफा होता चला गया और सामने दीवार का प्लास्टर उधरता जा रहा था। ये वो लम्हात थे जब मैं पहली मर्तबा चौंका। गोलियों की खौफनाक आवाज़ों ने मेरे जहन को झंझोड़ कर रख दिया। मेरा जुनून पानी के झाग की तरह बैठता चला गया। एरज बख्तियारी का खौफनाक चेहरा मेरे तसव्वुर में उभर आया और सूरत हाल की नज़ाकत अपने तमाम भयानक पहलुओं के साथ मुझ पर उजागर हो गई। अपना लर्जा खेज और इबरतनाक अंजाम मेरी नज़रों के सामने घूम गया। मेरी गिरफ्त ढीली पड़ते ही रुबाबा मेरे नीचे से निकलकर बिस्तर से उतर गई। वो बाबा बाबा चीखती हुई दरवाजे की तरफ दौड़ी। उसी वक्त फायरिंग रुक चुकी थी। ज़ाहिर है कि रिवाल्वर में जो गोलियां भरी जाती हैं उनकी तादाद वगैरह मुतय्यन नहीं होती। एरज बख्तियारी का रिवाल्वर भी खाली हो चुका था। भाग जा, यहाँ से भाग जा, अगर ना भागा तो तेरी खैरियत नहीं। ये आवाज़ खुद मेरी ही आवाज़ थी जो मेरे जहन में गूंज रही थी। मुझे ये एहसास पूरी शिद्दत से हो चुका था कि अब मेरा यहाँ रुकना मौत को दावत देने के मतरादफ है। एरज बख्तियारी का अताब मुझ पर ज़रूर नाज़िल होगा। मैं उसका बेटा सही, लेकिन वह मेरी इस हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ओहो हरामज़ादे! रुबाबा दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी। मैंने तेजी से चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं। दरवाजे का रास्ता तो मसदूद हो चुका था, लिहाजा अब मुझे फ़रार के लिए किसी दूसरी राह की तलाश थी। मेरी नज़रें उस खिड़की पर पड़ीं जो एक राहदारी में खुलती थी। मैं बेतहाशा उसकी तरफ दौड़ पड़ा। चूँकि वो खिड़की इमारत के बैरूनी रुख पर नहीं खुलती थी, इसलिए उसमें ग्रिल या सलाखें नहीं लगाई गई थीं। मैं खिड़की के करीब पहुंचा ही था कि मुझे अपने अकब में दरवाजे का बोल्ट गिरने की आवाज़ सुनाई दी। फिर दरवाज़ा खुलने का भी शोर हुआ। मैंने फुर्ती से खिड़की खोल ली। सोहराब, एरज बख्तियारी की गर्जदार आवाज़ सुनाई दी, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं था कि इसकी आवाज़ पर रुक जाता, पलट कर देखने की कोशिश करता। मैं उछल कर खिड़की पर चढ़ा और दूसरी तरफ कूद गया। सोहराब इस मर्तबा एरज बख्तियारी किसी शेर की तरह धाड़ा था। मैं पूरी कुव्वत से राहदारी में दौड़ता चला गया। मैं एरज बख्तियारी से खौफज़दा था और इंतहाई खौफ में ही दो ही बातें होती हैं, टांगों में जान बिल्कुल नहीं रह जाती या बला की कुव्वत ऊद कर आ जाती है। मेरे साथ दूसरी बात हुई। मैं जैसे उड़ा चला जा रहा था। मुझे जल्द अज जल्द ये इमारत ही छोड़ देना थी। इसके बाद मेरा ठिकाना कहाँ होता, ये अभी मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। मैं मुख्तलिफ राहदारियों और कमरों से गुजरता चला जा रहा था। जब मैं दीवान खाने से गुजरने लगा तो मुझे एक अबनूसी मेज़ पर एक चाबी रखी हुई नज़र आई। मैं उसे अच्छी तरह पहचानता था कि वो एरज बख्तियारी की कैडलक की चाबी थी। मेरे जहन में एक ख्याल किसी शोले की तरह फुरोज़ा हुआ और मैंने दौड़ते ही में वो चाबी अबनूसी मेज़ से झपट ली। पोर्च में एरज बख्तियारी की कैडलक मौजूद थी। खुशकिस्मती से मुझे उसका दरवाज़ा गैर मुतकफ़्फ़ल मिला, वरना उसे खोलने में चंद लम्हे तो ज़ाया हो ही जाते। सारी इमारत अब दौड़ते भागते हुए कदमों की आवाज़ से गूंज रही थी। वो तमाम मुलाजमीन जो एरज बख्तियारी के हुक्म से इस रात को अपने कमरों में मुक़ीद थे, अब एरज बख्तियारी की चीखों पुकार पर अपने कमरों से निकल आए थे। लेकिन इससे पहले कि वो मुझ तक पहुँचते, मैं कैडलक स्टार्ट कर चुका था। रात अपना निसफ पहर तय कर रही थी। ख़ियाबान करीम खान जिंद पर अब बराए नाम ट्रैफिक रह गया था। मैं चिकनी सड़क पर कैडलक को 60-70 मील की रफ्तार से उड़ाए लिए जा रहा था। मेरे जहन में तमाम जमालियाती एहसासात हरूफे गलत की तरह मिट चुके थे और जहन के अवानों में सिर्फ एक लफ्ज़ गूंज रहा था, फ़रार, फ़रार और सिर्फ फ़रार। एरज बख्तियारी से फ़रार। एरज बख्तियारी जिसका दूसरा नाम मौत था। मुझे मौत से रास्तगारी पाना थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि मैं बच सकूंगा। एरज बख्तियारी को दुश्मन बनाकर किसी को भी गोशा अफ़ियत नसीब नहीं हो सकता था। कम अज़ कम इस शहर शिराज में तो मैंने किसी को भी एरज बख्तियारी के हाथों की दराजी से दूर नहीं पाया था।
बड़े जीद किस्म के बदमाश भी उसके कदमों में नाक रगड़ते नजर आते थे। लिहाजा मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं थी। मुझे उसके हाथों से कम अज कम कोई इंसानी ताकत तो नहीं बचा सकती थी। हाँ, अगर कोई मावराई ताकत मेरी हमायत पर आमादा हो जाती तो दूसरी बात थी, लेकिन अगर मैं संजीदगी से किसी मावराई ताकत के बारे में सोचना शुरू कर देता तो ये हमाकत ही होता। मैं कार को दौड़ाए लिए जा रहा था, लेकिन मेरी कोई मंजिल नहीं थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन जब मैं कुरान दरवाजे से गुजरा तो मुझे खुद ही चौंक कर सोचना पड़ा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब मैं शहर से निकल चुका था और कैडलक तख्ते जमशेद की तरफ उड़ी चली जा रही थी। तख्ते जमशेद, शहर गद्दार, जहाँ कभी दाराए आजम के घोड़े की टापें गूंजती थी, लेकिन अब वो खंडर बन चुका था। मीलों में फैले हुए ये खंडर आज भी सिकंदर के इस इंतकाम की कहानियां सुना रहे थे, जब उसने यूनान से यहाँ आकर इस शहर अजीम के एक एक गोशे में आग लगा दी थी। गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने के बाद मैं अंधाधुंध भागता रहा। अंधेरे के बास में कई मरतबा शेरों और दीगर जानवरों के मुजस्समों से टकराते टकराते बचा। इसी तरह भागते हुए शायद मैं 1 मील दूर निकल गया, या शायद ये फासला कुछ कम हो। मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। फिर जो मैंने एक दीवार फिलांगी तो अचानक दाएं जानब से एक भारी भरकम आवाज़ सुनाई दी, हक। और मैं उछल पड़ा और पल भर के लिए हजारों चींटियां जिसमें रेंग गईं। नजरें भी आवाज़ की सिमत उठ गईं। मैंने एक इंसानी होएले को अपनी तरफ बढ़ते देखा। फौरन ही मेरे जहन में एक ख्याल उभरा कि एरज बख्तियारी के आदमियों ने मुझे कई सिमतों से घेरे में ले लिया था। मैंने उछलकर दूसरी तरफ भागना चाहा, लेकिन वही गुंजीली आवाज़ फिर मेरे कानों से टकराई, ठहरो अहमक, भागने की कोशिश मत करो। मैं जहाँ था वहीं जम कर रह गया। इस आवाज़ में न जाने क्या तिरसम था कि मेरे पैर मन भर के हो गए। सारे जिस्म में सनसनाहट फैलती चली गई। मेरी कुव्वत इरादी कुछ इस तरह दम तोड़ गई कि कदम उठाना तो दरकिनार, सिसकाना भी नामुमकिन था। कुछ ऐसी कैफियत थी जैसे पत्थर का बन गया हूँ। सर घुमाकर पीछे भी नहीं देख सकता था। बस मुझे कदमों की आहट करीब आती सुनाई दी, यहाँ तक कि वह मेरी पुश्त पर आकर रुक गई। फिर मैंने अपने दाएं कंधे पर एक हाथ की शफकत अमीज गिरफ्त महसूस की, और उसके साथ ही मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा वजूद पिघलता ही चला गया हो। पत्थर गोया एक बार फिर गोश्त पोस्त में ढल रहे थे। मेरे बच्चे, आओ मेरे साथ आओ, वही आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन अब उस शख्स का चेहरा दिखाई नहीं दिया। वो मुड़ चुका था और कदम उठाता जा रहा था। मैं बेइख्तियार उसके पीछे पीछे चलने लगा, और इस वक्त ये सोचे बगैर ना रह सका कि वो शख्स कोई बहुत ही पहुंची हुई हस्ती है। लोग उसके अहकामात की तकमील करने पर मजबूर हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं उस बंदे का बेदाम हो चुका था और खामोशी से उसके पीछे कदम उठाता जा रहा था, ये सोचे बगैर कि वो मुझे कहाँ ले जाएगा। कुछ ही दूर चलने के बाद मैंने उस पुरस्कार शख्स को एक टूटे फूटे हुए दरवाजे से गुजरते देखा। जब मैं भी उस दरवाजे से गुजरकर दूसरी तरफ पहुंचा तो मुझे एक छप्पड़ के नीचे रोशनी नजर आई। एक ताक में खासी मोटी सी शमा जल रही थी। ताक के ऐन नीचे प्याल का बिस्तर लगा हुआ था। अब रोशनी में मैंने देखा कि वो एक बुजुर्ग थे। उनके सर और दाढ़ी के लंबे लंबे बाग बेदाग सफ़ेद थे, और उन्होंने स्याह रंग का एक लंबा सा चुगा पहन रखा था। दफ्तन मुझे ख्याल आया कि बाबा असफंदी यारी तो नहीं। बाबा असफंदी यारी इस ज़माने में ईरान की खासी मशहूर शख्सियत थे। मैंने भी उनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। 20-25 साल पहले वो मस्जिद मुक़द्दस में रोज़ा इमाम रज़ा के जारूब कुछ थे, और ये ज़िम्मेदारी उन्होंने अक़ीदतन संभाल रखी थी। फिर न जाने क्या हुआ कि हुकूमत वक़्त की किसी मसलहत के पेश नज़र उन्हें वहाँ से हटा दिया गया। मैं इसी उधेड़ बिन में था कि वही आवाज़ दोबारा मेरी समाज से टकराई, बैठ जाओ, तुम्हारा ख्याल गलत नहीं है, मैं वही हूँ जो तुम सोच रहे हो। ओह,
मेरे मुंह से निकला और मैं चौंक कर उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर कुछ ऐसा जलाल और दबदबा था कि मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक गईं। और फिर मैंने बड़ी अकीदत से कहा, पहले आप बैठ जाइए बाबा, मैं ये गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ? मैं जो कह रहा हूँ वो करो। बाबा असफंदी यारी के लहजे में सख्ती सी। मैं एक झटके से प्याल के बिस्तर पर ढेर हो गया। मुझे यूं मालूम हुआ जैसे किसी ने मुझे धक्का दे दिया हो। बाबा असफंदी यारी खड़े रहे और उनकी गरम गरम नज़रें मुझे अपने जिस्म के आर पार होती महसूस हो रही थी। उसके बावजूद मैं बड़ा सुकून महसूस कर रहा था। एरज बख्तियारी के आदमियों का ख्याल मेरे जहन के तारीक गोशों में जा सोया था, जैसे वो मेरे लिए सरे से कोई ख़तरा ना रहे हों। मैं खुद को बाबा असफंदी यारी की नाकाबिल शिकस्त पनाह में महसूस कर रहा था। सोहराब, कदरे तवक्कुफ के बाद बाबा असफंदी यारी ने ठहरे हुए लहजे में कहना शुरू किया, आज तुमने जो हरकत की है तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम्हारी इस हरकत की जिम्मेदारी शैतान एरज के खून पर आयद होती है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि तुमने उस दूसरे खून को भी बदनाम कर दिया जो तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। आज तुम्हारी मजलूम माँ की रूह बिलबला गई होगी। बेहमदुल्लाह के वो मुसलमान थी और तुम्हारी पैदाइश के अमल में उसकी रज़ा शामिल नहीं थी। उस पर जबर हुआ था, उस पर जुल्म हुआ था और एक क़यामत थी जो उस पर से गुजर गई। सदे शुक्र कि नाकर्दा गुनाही की ये अज़ियत उसे ज़्यादा अरसे बर्दाश्त नहीं करना पड़ी। वो तुम्हारी पैदाइश के कुछ ही अरसे बाद इस दुनिया करबो बला से मुंह मोड़ गई। मैंने उसे एक मर्तबा बेटी कहा था, इसलिए उसने मरते वक़्त मुझसे इल्तिजा की थी कि मैं उसके जिगर गोशे का कम अज़ कम इस हद तक ज़रूर ख्याल रखूं कि वह बदबख्त अपनी सारी ज़िंदगी को बलाओं में गिरफ्तार ना कर ले। माँ के इस तज़किरे पर मेरा दिल भर आया, मेरे आंसू बह निकले। मैं सर झुकाए आंसू बहाता रहा और बाबा असफंदी यारी की आवाज़ मेरे कानों तक पहुँचती रही। मैंने तुम्हारी माँ की इस ख्वाहिश को कभी फरामोश नहीं किया था। इसलिए आज रात जब मैंने देखा कि तुम दुनिया की बदतरीन बलाओं को अपनी ज़िंदगी में आने की दावत दे चुके हो, तो मैंने तुमको इस वीराने में बुला लिया ताकि कुछ नसीहतें कर सकूं। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं गैर इरादी तौर पर तख्ते जमशेद की तरफ क्यों निकल आया। असफंदी यारी की रूहानी ताकत थी जो मुझे यहाँ खींच लाई। बाबा असफंदी यारी बोलते रहे, मैं तुम्हें सिर्फ एक नसीहत करना चाहता हूँ। अगर तुम सिर्फ एक नसीहत को गिरा में बांध लो तो बाकी नसीहतों की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। मेरी वो नसीहत ये है कि कभी मुल्क छोड़कर ना जाना। आज तुमने जो हरकत की है उसकी सज़ा तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगी। जिस्मानी अजाब तुम्हारा मुकद्दर बन चुके हैं, तुम्हें इन अजाबों को झेलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर तुम इन अजाबों से बचने के लिए मुल्क छोड़कर फरार हो गए तो फिर तुम्हें रूहानी अजाब भी झेलना पड़ेंगे। ऐसी बलाएं तुम्हारे पीछे लग जाएंगी कि तुम मुद्दत तक उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकोगे। चंद लम्हों के लिए एक गंभीर सकूत छा गया। बाबा असफंदी यारी की नज़रें मेरे चेहरे पर जमी रहीं और मैं उनकी बातों पर गौर करता रहा जो मुझसे कही गई थीं। खामोश क्यों है? बाबा असफंदी यारी बोले, क्या मेरी इस नसीहत पर अमल नहीं करना चाहते? ये कैसे मुमकिन है बाबा? मैंने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, आप अहकामात मेरी आंखों पर, मैं आपकी नसीहत कभी नहीं भूलूंगा। बस तो फिर जाओ, एक बदनसीब बादशाह के इस शहर बर्बाद में तुमको पनाह नहीं मिलेगी। जाओ, उठो। लेकिन बाबा, मेरे लहजे में हचकचाहट थी। हाँ, मैं जानता हूँ कि एरज बख्तियारी के आदमी तुम्हारे ताक़ुब में हैं, लेकिन तुम्हें उनसे आंख मचोली तो खेलना ही पड़ेगी। अपनी जहानत को इनकी चालबाजियों से टकराना तो पड़ेगा। इस वीराने में छुप कर तुम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक तुम कब तक छुप सकोगे? और पत्थरों को चाट कर जिंदा नहीं रहा जा सकता। जाओ और हालात का मर्दाना वार मुकाबला करो। जाओ, खुदा तुम्हारा हामी और नासर हो। Come and fly away with me. Come and fly away with me.